श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन, अमरदास गुर हृदय नित त्यावो, हृदय नित त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री अर्जन विघ्नन के नासक, विघ्नन के नासक। हर गोविंद शुभ मत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाओ बहोरी, तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला, तरो तारा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा, या मैं अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उधद, बंधो कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु, तह प्रसाद सच होए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक, गरीबां दे अनाथां दे नाथ, गरीब निवाज सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे निगी गोद दा आनंद माणदे ਸਰੋਤਾ जनो, आप वड्डियां भागां वाले हो जो ऐसे कलयुग दे समय विच भी आप जी नूं सत संगत दी प्राप्ति हो रही है। ये भाई गुरमुखो बहुत वड्डे भागां दी निशानी है। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज जी अपनी किरपा कर रहे हैं। सो आपां 10वें पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दी उचारी हुई बाणी श्री अकाल उस्ताद साहिब जी दे अर्थ भाव विचार रहे हाँ। ये सतगुरु महाराज जी दी रहमत सदका
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਏਕ ਚਿਤ ਜਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਕ ਚਿਤ ਜਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਬਿਤ ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਕੈ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕੈ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ,
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਬਿਤ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬਿਤ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕੈ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੈ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਧੁਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਵਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਗ ਜੋ। ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੇਫਿਕਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਹੁ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਇ ਕੈ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਭੀਖ। ਕਹੂ ਮਾਹ ਦਾਨ ਹੋਇ ਕੈ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇਤ ਹੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਕੇ ਭਿੱਛਿਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਤਹੁ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਇ ਕੈ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਭੀਖ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਆਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਸਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋਏ ਕੈ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਦੀਜਤ ਅਨੰਤ ਦਾਨ। ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜਨ ਤੇ ਛੀਨ ਛਿਤ ਲੇਤ ਹੋ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਦੀਜਤ ਅਨੰਤ ਦਾਨ। ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੀਜਤ ਅਨੰਤ, ਅਨੰਤ ਭਾਵ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜਨ ਤੇ ਛੀਨ ਛਿਤ ਲੇਤ ਹੋ। ਐਸੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤਪ ਤੋਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਵੇਦ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾਸੂ ਵਿਪਰੀਤ। ਕਹੋ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਵੇਦ ਰੀਤ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਤਾਸੂ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾਸੂ ਵਿਪਰੀਤ। ਕਹੂੰ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੇਵ ਗੁਣ ਸਾਂਭੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਉਗਰ ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰ। ਕਹੂੰ ਭਏ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਹੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ। ऐसी महाराज सतगुरु जी की खेड है। कहूँ जछ गंधर्व उरग कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिसाच कहूँ प्रेत हो। महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हे मेरे परवरदिगार वाहिगुरु किते जछ जछ कहते हैं कुबेर देवतियां दा खजानची।
किते तां महाराज सच्चे पातशाह जछ, किते गंधर्व। गंधर्व ਜਿਹੜੇ देवतियां ਦੇ रागी उगर, किते कहते महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह गंधर्व, किते सर्प, किते विद्या दी विचारी हो, विद्या नूं विचार रहे हैं महाराज। किते नचार ते किते गुप्त रूह भूत प्रेत हो रहा है। पर अज दे तां कई ऐसे महापुरुष हैं कहते कोई भूत प्रेत हुंदा ही नहीं। फिर वो भाई नहीं, सारा कुछ है महाराज दा बनाया होया। वो आप ही पसर रहा है सारे पसारियां दे विच। किथे जच है, किते गंधर्व है, किते विद्या नूं विचार रहा है, किते भूत प्रेत गुप्त रूह भी आप ही हो रहा है। कहूँ होए का हिंदुआ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूँ होए का तुरका पुकारे बांग देत हो। जदों गुरु नानक देव महाराज कोले ना हिंदू ते मुसलमान इकट्ठे हो के गए, कहते महाराज आप जी दसो भी हिंदू वड्डा कि मुसलमान। महाराज कहते शुभ अमला बाजो दोवें रोई। इत्थे ते अमलों की गल है, कहते उत्थे हुण महाराज कह रहे कहूँ होएक हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो। किते हिंदू हो के गायत्री मंत्र नूं गुप्त तौर ते जप रहा है, क्योंकि सारे उहदी शक्ति है, प्रकाशक है। महाराज कहते शुभ अमला बाजो दोने रोई। कहते सतगुरु सच्चे पातशाह भी शुभ अमल सुन के मनण दी गल है खालसा जी। इल्म तो है, जे उहदा अमल नहीं फिर प्राप्ति नहीं हुंदी खालसा जी। दोहे पासे हिंदुआं दे विच भी ते मुसलमानां दे विच भी महाराज कहते तेरी वो जोत प्रकाश रही है। सतगुरु सानू समझा रहे हैं गुरु के प्यारिओ, द्वैत भाव का त्याग करिए, ईरखा का त्याग करिए। जे इस पंक्ति नूं हिंदुस्तान दे विच जिन्ने भी साडे वीर भरा भैणां आदक हन जे मन लेण तां साडे समाज दा कल्याण हो सकदा है। भी साडा कोई पराया नहीं। महाराज कहंदे सारे पासे कते तू हिंदू हो के गायत्री मंत्र दा जाप कर रहा है, किते तू मुसलमान हो के मसीत दे थड़े उत्ते खलो के बांग दे रहा है। कहूँ कोक काब होए का कुरान को पढ़त मत, कतहूँ कुरान को निधान जान लेत हो। हे महाराज सच्चे पातशाह, हे गरीब नवाज जीओ, किते कोक शास्त्र खालसा जी कोक शास्त्र गृहस्थ आश्रम दे भोग विलासां दा शास्त्र है। किते तां कहंदे महाराज जी तुसी कोक शास्त्र, किते होर कवितावां ते पुराणे ग्रंथां नूं वाच रहे हो, किते कुरान दे सिद्धांत नूं जान रहे। भाव के सारी तेरी ही जोत प्रकाशमान है। कुरान को निधान जान ले तो हो, कदे तो कुरान की जानकारी ले रहा है, कदे कोक शास्त्रां की जानकारी, कदे पुराणा नूं पढ़ रहा है परमेश्वर।
कहूँ कहूँ वेद रीत, कहूँ तास्यु विपरीत, कहूँ तिरगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। महाराज कहते, हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह परमेश्वर जी, किते वेदां दी रीति, किते उस तो उल्ट, किते तिन्ने गुणा तो परे, किते सरगुण दे विच भी तू ही वस रहा है। कहूँ वेद रीत, कहूँ तासु विपरीत, कहूँ तिरगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। कदे तां वेदां दी रीति, कदे उस तो विपरीत हो रहा है। तीनों गुण रजो तमो सतो गुणा तो अतीत भाव परे है, ते किते सरगुण समेत भी आप ही हो रहा है। कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। आहा महाराज कहते, किते दा देवतियां दे इकट्ठ विच सुभाएमान हो रहे हैं, देव बुद्धि वाला प्रकाशमान हो रहा है, किते दैंतां नूं हंकार दी पुठ चाड़ रहा है। साजे दानो देवते तेने अंदर बाद रचाया, किते उन्हां दे विच फिर झगड़ा पा रहा है परमेश्वर। कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, किते दे देवतियां दे विच महादेवता हो के उन्हां दा मालक हो के विराजमान आसन लाया होया है। कहूँ दानवान को दानवानों गुमान मत देत हो, उन्होंने हंकार दी पुठ चाड़ रखी है। ऐसे वाहिगुरु जी हन। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। ये महाराज जीओ, किते इंद्र राजे नूं इंद्र दी पदवी प्रदान कर रहे हो, किते इंद्र कोलों उसकी पदवी लुट खो के लैके उसनूं कंगाल कर रहे हो। हे महाराज, कलगीधर पातशाह कह रहे ने गुरु के प्यारिओ, समझा रहे हैं, फरमान किया भी हे महाराज, सारे प्यासे मैनू आप जी दे ही दर्शन हो रहे हैं। जदों तुसी इंद्र राजे नूं उहदी पदवी ते विराजमान करा रहे हो, प्रदान कर रहे हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कदे उसनूं फिर उस तो ला दिंदे हो पदवी तो। आप जी दे कोतक हन, आप ही वरत रहे हो। कहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। खालसा जी, बड़े बड़े लोग डॉक्टर प्रोफैसर कई टीके करते हैं, कई इत्थे आ गए उन्हां दी बुद्धि बंद हो जाती है। सतगुरु जी कहते, कहूँ विचार कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो। किते बुद्धिवान, किते कबुद्धि दा रूप, किते अपनी स्त्री नाल प्यार कर रहे हैं, किते पराई स्त्री नाल व्यभिचार कर रहे हो। हे वाहिगुरु, तेरी अजब लीला दा कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं पा सकता। इसे करके महाराज ने लिखा, कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। ये सारिया अवस्थावां दा मालक ओ वाहिगुरु आप ही है। कहूँ वेद रीत, कहूँ तास्यु विपरीत, कहूँ तिरगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो।
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। कहूँ शस्त्र धारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नकेत हो। ओ वाहिगुरु सच्चे पातशाह महाराज किते शस्त्र धारण करे हुए ने, सूरवीर स्वरूप है, किते विद्या दे विचारवान होए, किते खाण दे आहार विच हो, किते किसे इस्त्री दे वस हो रहे हो, प्रेम वस। किवें हो रहा है? क्योंकि प्रेम नूं सब तो वड्डा दस्सिया कलगीधर पातशाह महाराज ने, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अज वर्गा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम राधा कृष्ण। किन्नियां उदाहरणां दईए खालसा जी, उन्हां दा प्रेम जिन्हां ने सच्ची प्रीत लाई। भाई मनी सिंह जी दा प्रेम बंद बंद कट्टे गए, पर अपने सिद्धांत नूं अपने प्रेम नूं ना छड्डिया। महाराज कहंदे किते तां तुसीं सूरवीर हो के शस्त्र धारे होए है, किते महाराज तुसी विद्या दी विचार कर रहे हो, किते आहार रूप होए पे हो, किसे दा आहार बने होए हो, किते किसे इस्त्री दे प्रेम दे विच ओदे वस हो रहे हो। कहूँ देववानी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मृडानी, कहूँ श्याम कहूँ सेत हो। किते देवतियां दा, किते शारदा देवी, किते भवानी देवी, किते मंगला देवी मृडानी, किते पार्वती शिव देवी, अते किते महाराज सच्चे पातशाह जी कृष्ण विष्णु आदिक श्याम रूप, अते किते सच्चे पातशाह महाराज रामचंद्र दा स्वरूप भी आपने बनाया होया है। कहूँ देववानी कहूँ शारदा भवानी, किते महाराज आप जी शारदा देवी का रूप धारिया, किते भवानी का रूप धारिया होया। कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, हे महाराज किते दा कृष्ण जी का रूप बनाया होया। सेत भाव सफेद तो किते महाराज रामचंद्र जी का स्वरूप बनाया होया। पर अज दा खालसा जी ऐसे लोग भी ने जिहड़े कहंदे भी ये तो सारा मिथ्यास है। वो भाई नहीं, जे हैगे सी तां गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच या श्री दसम ग्रंथ साहब जी दे विच इन्हां दी गल होई है। वो सिद्धांत वखरा है भी महाराज सतगुरु जी ने कहते भी कान सुने पहचान न 300 लिवला की मोरी भगन सो महाकाल रखवार हमारो, वहाँ लो मैं किंकर थारो। वो सिद्धांत महाराज ने प्रगट किया भी धर्म युद्ध का चाह है, ता महाराज सारी बाणी उचार रहे हैं। सो गुरु के प्यारिओ ओदे ही स्वरूप है सारे। महाराज सिख की ईरखा खत्म कर रहे हैं। इत्थे अज दे जिहड़े रखालू लड़ते फिरदे है ना, मैं वड्डा धर्मी हाँ मैं वड्डा धर्मी हाँ। खालसा जी धर्म धर्म की गल कोई नहीं, उन्होंने कोले चौधर की गल है। वो अपनी चौधर चाहते हैं, क्योंकि धर्मी का तो किसी के नाल कोई लड़ाई झगड़ा कलेश है ही नहीं। धर्मी तो जे लड़ेगा जुल्म के विरुद्ध लड़ेगा। जे धर्मी का कोई किसी नाल वैर है, पखंड नाल वैर है, होर किसी नाल कोई वैर नहीं धर्मी का। सो महाराज सानू यही समझा रहे हैं। इत्थे इस तुक दे विच महाराज यही कह रहे हैं सानू खालसा जी,
कहूँ देव बानी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला बरडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो। कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर गामी, कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो। हे महाराज वाहिगुरु जी, किते धर्म दा धारनी हो के टिके होए हो, किते फिर चक्रवर्ती फौज है। महाराज कहते कहूँ धर्म धामी कहूँ ठौर गामी चक्रवर्ती स्वरूप है, कहूँ जति किते महाराज आप जति सती हो, कहूँ जति कहूँ कामी किते फिर विचार भी हो रहा है, कहूँ देत कहूँ लेत हो। क्योंकि महाराज आप पिछे जाप साहब जी दे विच ये सारा पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं भी वो किसी दे अधीन नहीं, सगों सारे उहदे अधीन है। इसे करके महाराज कह रहे हैं, हे महाराज सच्चे पातशाह, हे वाहिगुरु जी, किते तो आप जति हो, किते विचार हो रहा है, किते सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप दे रहे हो कितों लै रहे हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तासु विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। खालसा जी तीजी वार सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सानू उस महाराज जी दे स्वरूप दे दर्शन करा रहे हैं जिहड़ा कण कण दे विच व्यापक है। सरगुण उहदा ही स्वरूप है, तिन्ने गुणा तो अतीत भी उही है, कदे वेदां दी रीत नूं प्रचलित कर रहा है अते कदे उन्हां दे उल्ट प्रचार भी उही आप ही कर रहा है। कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। महाराज कहते हे सच्चे पातशाह, मैं जिथे भी वेखदा जिथे तक निगाह मारदा, हे सतगुरु आप ही दा ही स्वरूप है। किते महाराज जी आप जटाधारी जोगी हो, किते कंठे ही धारन वाले वैरागी भी आप ही हो, किते महाराज गृहस्थी भी आप ही हो, ते ब्रह्मचारी भी आप ही हो रहे हो, किते योग की साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो। हे महाराज जिथे भी मैं वेखदा हाँ, महाराज आप जी का ही स्वरूप नज़र आ रहा है। कहूँ जटाधारी जिथे भी निगाह मारिए, कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। महाराज इसे करके सानू समझा रहे हैं, गुरु के प्यारिओ ओ वाहिगुरु परमेश्वर दी गत मित नूं कोई नहीं जान सकदा। ओहदे सारी ओहदी किरिया इस संसार दे विच आप ही चलाई हुई है। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। हे महाराज सच्चे पातशाह, किते कन्न पड़ा के कन्न पाटे जोगी हो, उहदे विच भी आप जी का स्वरूप दिख रहा है। कहूँ डंडी होए पधारे, हे महाराज जी किते आपने डंडा धारण किया होया है। कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। हे महाराज किते सेवरड़ियां दे रूप विच धरती उपर नंगे पैरी चल रहे हो। सारियां दे विच महाराज सब में जोत जोत है सोए, तिस दा चानण सब में चानण होए वाली गल महाराज सानू समझा रहे हैं। खालसा जी कत हो सिपाही हो कै सादत सिलाहन का, कहूँ छतरी होए कै अर मारत मरत हो। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, जदों मैं जंग दे मैदान विच निगाह मारदा,
किते सिपाही हो के शस्त्र विद्या सिख रहे हो, किते सूरवीर दे रूप विच युद्ध करके मरदे अते मारदे हो। खालसा जी बार बार दास की बेनती है, ये दोहे सिरियां काप स्वामी, खेला विगसा अंतरजामी। उसे सिद्धांत नूं सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज सानू इस बाणी दे राही समझा रहे हैं, खोल के समझा रहे हैं। कतहूँ सिपाही हो के सादत सिलाहन को, कहूँ छतरी होए के यार मारत मरत हो। हे महाराज किते सूरवीर हो के जंग दे मैदान दे विच कदे मारदे हो कदे मरदे हो। कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भव पूतन की भावना भरत हो। हे महाराज वाहिगुरु किते तुसी धरती दे भार नूं हौला कर रहे हो। खालसा जी धरती दे उपर ना पहाड़ों का भार है, ना 84 लाख जीवां का भार है, ना दरियावां का भार है, ना ही धरती होर किसी भार नूं मनदी है। धरती दे उपर जिहड़ा भार है वो धरती अकिरत कांडदा, किसे दी कीती होई नो काण करना, अकिरत काण ना जानना, मतलब प्रस्ती रखनी, उसदा धरती सब तो वड्डा भार मनदी है। क्योंकि जिहड़ा किरत कन होएगा वो धर्मी भी नहीं होएगा, वो धर्मी होएगा, उहदे विच धर्म की कोई गल नहीं होएगी। सो महाराज कहंदे हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी किते तां आप महाराज उस भार नूं उतार रहे हो। कहूँ भव पूतन की भावना भरत हो, किते महाराज धरती दे जीवां दी भावना पूरी कर रहे हो। हे सच्चे पातशाह जी ये आप जी का ही स्वरूप है, आप जी की कला वरत रही है संसार विच। कतहूँ गीत नाद के, कहूँ गीत नाद के निधान को बतावत हो, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो। वाहिगुरु 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 गज के आखो वाहिगुरु। हे सच्चे पातशाह महाराज जी किते आप रागा दे बजंतर रागा नूं बजा रहे हो ते उन्हां दी सिक्ख्या दे रहे हो, किते नाच करा रहे हो, किते महाराज चित्रकारी दे उस्ताद हो। आप जी की कला वरत रही है। सो गुरु के प्यारिओ इस सिद्धांत नूं सच्चे पातशाह महाराज साडे हिरदे विच वसा देण, फिर साडा किसे नाल वैर नहीं रहेगा, साडी द्वैत भाव खत्म हो जाएगी, साडा भरम चुक्या जाएगा, फिर उस प्रेमा भगती की प्राप्ति होएगी जिहदे नाल साडी मुक्ति कल्याण लोक ते परलोक सवर जाएगा। सो गुरु प्यारिओ इस महान बाणी दे इस अकाल उस्तत दी बाणी दे जो काल दी उस्तत है अर्थ भाव किरपा करके कलगीधर पातशाह महाराज साडे हिरदे विच वसा देण, साडा भी कल्याण होवे भला होवे। सो भाई समय दे लिहाज दे नाल इत्थे ही समाप्ति है। कल नूं आपां इस तो अगे फिर विचार करांगे। सो भाई लास्ट वालियां पंक्तियां पढ़िए अते समाप्ति करिए। दास की निमरता सहित बेनती है भाई, बहुत बहुत वड्डे ज्ञानी विद्वान महापुरुषान दास का एक तुच्छ उपराला है, तुच्छ बुद्धि है। सो भाई कथा वार्ता करदियां तो अनेका त्रुटियां भुल्लां हो जांदियां। आप दा अनजान बच्चा सेवक जान के बख्श देना, इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी। आओ लास्ट वालियां पंक्तियां पढ़िए अते समाप्ति करिए जी।
कहूँ भूम पार को उतारत हो महाराज। कहूँ पाव पूतन की पावना परत हो। कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो। कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निदान हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।